Yes, good evening, everyone. So we started with company law in our, I believe, not in the last week, but last to last week, right? Last week तो मैंने class ही नहीं ली थी. All right. So the moment we have started with, yes, good evening, Bhavika. So the moment we started with company law, we have covered one topic, which is features of company. Right, and features of company is like one of the most important thing to understand, like what is company. Okay, it is the introductory approach to understand what is company. Okay, so I hope there is no query with respect to company features. If there is, do let me know. Otherwise, I'll move forward with the other topics. Yes, any doubt? Any doubt with respect to company features, which we discussed in our previous class? Yes, should I move ahead with the other topic? Yes, no. Bhavika, you haven't attended the last lecture. Last lecture was related to the features of company, right? And बेटा last week हुआ था वो. Last week तो मैंने class ही नहीं ली थी. तो एक बार आप live lecture देख लेना and you will get to know that what are the features of company. Okay. And Chinmay, I'm asking, should I move ahead, or if is there any doubt with respect to company features, then do let me know. Otherwise, I'll move forward with the rest of the topics. Yes. All right. Chalo. Our next topic is formation of company. So see, in our previous lectures, we have gone through the company features. The definition of company is given under section 2 clause 20. I believe we have also seen it. ठीक है, section 220 defines the company, and the definition is not that much expressive, right? It doesn't let us to understand that what is the concept of company actually is. All right, so that is why we have gone through the features of company. Okay, right from the corporate personality to the last one, which is capacity to sue and be sued. So these were the important features of the company, and it helps us to understand that what is company actually. ठीक है. Now, the next very concept which comes in our course is the formation of company. It is covered under section 3. To understand this very part, you can also go through the Bear Act as well. ठीक है, मैं अभी Bear Act खोलती हूँ अगर मेरे को ज़रूरत लगी तो. Section 3, if you are going to refer formation of company, so it will let us know key first of all how many types of companies are there. Once you refer section 3, you are going to find three types of companies: public, private, and OPC. OPC stands for one person company. Okay. Earlier, OPC wasn't part, it wasn't, expressly given under section, under Companies Act 2013. ये जब से 2013 का नया एक्ट आया है कंपनीज एक्ट का, तब से ओपीसी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जस्ट टू मोटिवेट, जस्ट टू बूस्ट सोल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. तो ये जो आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है जो कि सेक्शन 3 में दिया गया है, इट टॉक्स अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी: पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी. और टाइप्स की भी कंपनी होती है, जैसे देयर आर अदर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस एज वेल, बट प्राइमरली there are three types of company: public, private, and OPC. There are government companies also, foreign companies also, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट, और भी बहुत ढेर सारे टाइप के होते हैं. बट ये तो आपके रेस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन हो गए.
Primarily, there are only three types of company, ठीक है? Public, private, and OPC. And these three type of companies are further classified. They are further divided into limited by shares, limited by guarantee, and having unlimited liability. इसका क्या मतलब हुआ? So, if there is a public company, the public company could be formed, which is being limited by shares, या लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो किसी ने पब्लिक कंपनी खोला है तो इट कुड बी लिमिटेड बाय शेयर्स, या ये सब जो तीनों ऑप्शंस दिए हैं ना, सब में और लगा हुआ है। लिमिटेड बाय शेयर्स होंगे, या लिमिटेड बाय गारंटी होगा, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा। तीनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है, या तीनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। All right. So if there is a formation of public company, it could be limited by shares. और ये जो limited by shares वाली जो category है, it is like one of the most common category. ठीक है, इसी मतलब लाइक जो लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं, मैक्सिमम कंपनीज ऐसी ही टाइप की होती हैं। लिमिटेड बाय गारंटी में आपको बहुत कम एग्जांपल्स मिलेंगे, और अनलिमिटेड लायबिलिटी में तो और ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं, लेकिन होती हैं कंपनीज। ठीक है, so first of all we need to understand that there are three types of company: public, private, and OPC, and they can be further classified into whether public companies be limited by shares or limited by guarantee or having unlimited liability. तीनों में से कोई एक कैटेगरी होगा, दो या तीन का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, एक ही कॉम्बिनेशन रहता है। सेम इज विद द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इट कुड बी लिमिटेड बाय शेयर्स, और इट कुड बी लिमिटेड बाय गारंटी और हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओपीसी का भी यही सेम होगा, इट कुड बी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, ओके, एक्सक्यूज मी। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी? तो अगर कोई भी कंपनी विच इज में लिमिटेड बाय शेयर्स है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो कैपिटल है वो शेयर्स के थ्रू उठाया गया है। ठीक है, ये पब्लिक इशू और ये जो शेयर्स हैं, ये जो फंड्स हैं, ये हम लोग और डिटेल में बात करेंगे आगे। देखिए, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कंपनी ने अपने कैपिटल उठाने के लिए शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स व्हिच आर नोन एज शेयर्स, राइट? और लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। या सॉरी फॉर एक्सक्यूज। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये होता है कि देखो, पहली बात तो शेयर्स के थ्रू पैसे उठाते हैं ये लोग। शेयर्स के थ्रू पैसे उठाते हैं मतलब, जैसे कि आप लोगों ने आईपीओ सुना होगा, या आप लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अगर जानते होंगे, तो वहां से कंपनीज पैसे उठाती हैं। आपको अगर प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी का, तो आपने शेयर इन्वेस्ट कर दिया। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये होता है, लिमिटेड। लिमिटेड यहाँ पे काफी प्राइमरी, मतलब काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे लिमिटेड का मतलब होता है यहाँ पे लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने किसी कंपनी में 20,000 लगाए हैं, ठीक है, ऑल राइट। तो अगर मान लो कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो मुझसे 20,000 पैसे या 20,000 रुपए ही मुझसे वो मांगे जाएंगे। ठीक है, कंपनी मान लो बंद होने जा रही है, मैंने आज इन्वेस्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद मान लो कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी मुझसे 20,000 रुपए बोलेगी कि मैडम आप 20,000 रुपए दे दीजिए, या जितना आपका बचा है अमाउंट आप उतना दे दीजिए, हमारी कंपनी बंद हो रही है एंड वी नीड फंड्स। तो दिस इज नोन एज लिमिटेड बाय शेयर्स। तो शेयर होल्डर्स ने जितने पैसे लगाए हैं उनसे उतना ही वसूला जाता है, उनसे उतना ही कंट्रीब्यूट कराया जाता है व्हेन द कंपनी रन्स, या व्हेन द कंपनी इज गेटिंग बाउंड अप। बाउंड अप का मतलब होता है कि कंपनी को बंद जब किया जाता है तब, राइट? दिस इज नोन एज लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइबिलिटी है, ठीक है।
सेकंड आता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में देखो आपके शेयर होल्डर्स नहीं होते, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है, या गारंटर्स भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो गारंटी दिए रहते हैं कि अगर कंपनी बंद होगी तो हम 1 लाख रुपए दे देंगे या 2 लाख रुपए दे देंगे। तो जितना आपने कमिटमेंट किया है आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे इफ द कंपनी गोज टू, आई मीन इफ द कंपनी इज गेटिंग वाउंड अप, ठीक है। थर्ड है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है मेंबर्स की, ठीक है। वैसे ही इस टाइप की कंपनी खोल के कौन रिस्क लेगा, बट द फैक्ट इज दैट देयर आर कंपनीज विच एक्चुअली एग्जिस्ट हैविंग द अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कैटेगरी इज एमवे कंपनी। एमवे का नाम सुना है आपने, बिल्कुल नाम सुना होगा आपने, हो सकता है प्रोडक्ट भी यूज किया हो। जो पर्सनल केयर का रेंज होता है, इनको मेंबर बनाओ 4 लोगों को, फिर 4 लोग वो दूसरों को पकड़ेंगे मेंबर बनाएंगे तो उनको कुछ डिस्काउंट मिलता है, कमीशन रहता है, ऑल दोस थिंग। तो एमवे इज द कैटेगरी ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। यस और नो, सुना है एमवे? AMWAY? यस। हाँ, तो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। अनलिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटी में बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं। मैक्सिमम जो आपको एग्जांपल्स रहेंगे दैट ऑल आई मीन लाइक मैक्सिमम टाइप ऑफ कंपनीज दे आर लिमिटेड बाय शेयर्स, क्योंकि वो लोग पैसे उठाते हैं जनरल पब्लिक से या प्राइवेट लोगों से, इन्वेस्टर से पैसे उठाते हैं, उनको बदले में शेयर्स देते हैं, दैट इज वाई दे आर नोन एज शेयर्स। तो मैंने मान लो कमिटमेंट किया है कि चलो मैं 10 लाख लगाऊंगी या 10 हजार लगाऊंगी, तो मुझसे 10 हजार से ज्यादा नहीं मांगा जाएगा अगर कंपनी बाउंड अप हो रही है तो, दैट्स इट। तो these are the categories of company. Let us understand in detail that what is private, public and OPC company, ठीक है। एक सेकेंड। सेक्शन 2 क्लॉज 71 डिस्कसेस अबाउट पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी का प्लीज ये नंबर्स वगैरह आप याद रखना, एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। डजेंट मैटर आप कौन से एग्जाम में बैठ रहे हो, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में ये फैक्टर तो है, ये नंबर वगैरह पूछ लेते हैं ये लोग। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन होते हैं 7 एंड मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल पहले इसका दिया था एक वैल्यू, लेकिन 2015 के अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया है, सो इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। थर्ड है आपका इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, राइट, इसमें जो शेयर्स ट्रांसफर करना बहुत इजी रहता है एज कंपेयर टू द प्राइवेट कंपनी। थोड़े से रिस्ट्रिक्शन होते हैं बट इट इज इजी एज कंपेयर टू द प्राइवेट कंपनी। अगर आपको कंपनी के शेयर्स होल्ड करने का मन नहीं है, आप दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दो प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग द प्रोसीजर्स, राइट। एंड द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी एंड्स विद द वर्ड लिमिटेड। अच्छा चलो, मैं तो इतना लेक्चर दे रही हूँ, ये बताओ टाटा कंपनी प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है? हाँ जी बताइए। टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं, टीसीएस उठा लीजिए या टाइटन है, और चश्मे वाला क्या है, आई प्लस क्या तो है उसका, राइट, तनिष्क है, ये सब क्या है? हम्म, टाटा सन्स या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या आदित्य बिरला ग्रुप, भाविका इज सेइंग प्राइवेट। अच्छा ओके, और बताओ भाई, ये जो मैंने कंपनीज के जो मैंने नाम लिए हैं ये कैसी कंपनीज हैं, प्राइवेट है कि पब्लिक है कि ओपीसी है, बताओ। हम्म। सिमरन इज सिंह प्राइवेट, ओके। चिन्मय इज सिंह पब्लिक, वाई चिन्मय, वाई दे आर पब्लिक? हम्म। मोटोज इज पब्लिक, मोटो, मोटोज, व्हाट इज मोटोज बेटा? टाटा मोटर्स इज पब्लिक, सॉरी।
Okay. Only Tata Motors. What about rest? Reliance, Aditya Birla Group, Infosys, TCS, Sonata. बताइए. रिलायंस इज पब्लिक. क्यों? क्यों पब्लिक बोल रहे हो? पब्लिक है तो क्यों पब्लिक है? इट्स एंड विद लिमिटेड. Okay, their shares are available in open market. Yes. सिमरन, आप तो प्राइवेट बोल रहे थे. चलो देखो, जो भी मैंने कंपनीज के नाम मेंशन किए हैं, दे ऑल आर पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी का मतलब सरकारी कंपनी नहीं होता है. सरकारी कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी. Government company means the government is holding minimum 51% shares in that particular company. अब चाहे वो कोल लिमिटेड हो या गेल हो, सेल हो, जितने भी महारत्ना, मिनी रत्ना है, ये सब सारे आपके गवर्नमेंट ही होते हैं. ठीक है. आईआरसीटीसी हो गया, ये सब सारी चीजें, तो मिनिमम इनका 51% होल्डिंग होता है. इनको पब्लिक कंपनी आप नहीं कहते हैं. पब्लिक कंपनी आपकी ये हो गई, जैसे आपका रिलायंस है, टाटा से जितनी भी रिलेटेड कंपनी है, और कौन कौन है, बहुत ढेर सारे हैं. अदानी के आप देख लो. ठीक है. अदानी है, टाटा है, आदित्य बिरला है, हिंडाल्को, एंड और कौन कौन है, एल एन टी है, एंड कई कंपनीज है, अभी तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है. कई कंपनीज है. तो ये सब पब्लिक कंपनी है. क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि ये लोग पब्लिक से पैसे उठाते हैं. कहाँ से पैसे उठाते हैं? पब्लिक से पैसे उठाते हैं. कैसे पब्लिक से पैसे उठाते हैं? अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट देखा होगा, बीएससी है या एनएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों का ऑफिस मुंबई में है. ठीक है. अगर आपने इनका डेटा देखा होगा, या जो इनका जो दिखाता है, शेयर्स ये लोग ट्रेड करते हैं, इसमें आप मैक्सिमम कंपनीज के शेयर्स देखोगे. और मैं बीइंग अ जनरल पब्लिक, अगर मेरे को इंटरेस्ट है उस कंपनी के शेयर्स खरीदने में, तो मैं वहां से खरीद लूंगी. अभी तो कई ढेर सारे प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, जैसे ग्रो है, जेरोधा है, आप यहाँ से भी पैसे खरीद सकते हो. तो जेरोधा एंड ग्रो, दे आर बेसिकली द ब्रोकर्स. ठीक है. ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और अपना कुछ कमीशन चार्ज करते हैं. तो आप कोई भी ऐप देख लो, ग्रो वगैरह का तो इतना ऐड आता है. जेरोधा को भी जानते ही होंगे. ठीक है. निखिल कामत. हाँ, अभी तो आजकल उसकी डेटिंग चल रही है, किसके साथ? तो रिया चक्रवर्ती के साथ. माय गॉड. खैर, बात ये है कि जो जो कंपनीज आपको स्टॉक एक्सचेंज में दिख रही हैं, इसका मतलब ये है कि ऑल आर पब्लिक कंपनी. बिकॉज एंड डेफिनेटली दे हैव टू कंप्लाई सम, मतलब कुछ उनके कंप्लायंस भी होते हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी जाके वहां पे ट्रेड कर सकता है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. तो बात ये है कि जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, आप इनके शेयर्स खरीद बेच सकते हो. ठीक है. फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज. राइट. पब्लिक कंपनीज ये होती हैं. ओके. आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस. समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? बताइए. Am I making some sense? Yes. Yes. No. No. चलो. सिमरन नहीं कुछ बोल रही है. सिमरन. चलो. तो ये पब्लिक कंपनीज हो गई. अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वो होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिस्टेड होती हैं. आपको स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी कंपनीज नहीं दिखेंगी. ठीक है. क्योंकि इसमें पब्लिक पैसे नहीं लगा सकती है. प्राइवेट लोग लगा सकते हैं. मान लो मैंने कोई प्राइवेट कंपनी खोली है, तो मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे ले सकती हूँ. या कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो उनसे मैं पैसे ले सकती हूँ. जनरल पब्लिक के पास मैं नहीं जा सकती. अगर जनरल पब्लिक के पास मुझे जाना है, देन आई हैव टू कंप्लाई सम
रिक्वायरमेंट्स जो भी पब्लिक कंपनी की होती हैं, पहले पहले मेरे को तो पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले बात तो। खैर, प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ एक, ज्यूरिस एज प्राइवेट लिमिटेड, ज्यूरिस एज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इसका नाम आप देखना, आपको स्टॉक एक्सचेंज में नहीं दिखेगा, ठीक है? ओके, अभी मुझे यही ध्यान आ रहा था। और भी प्राइवेट कंपनीज का आप नाम नहीं सुने रहोगे क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में नहीं अवेलेबल है। पब्लिक डोमेन में इन द सेंस, देखिए जहां पे पब्लिक पैसा लगाती है आप उसी कंपनीज के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? खैर, तो प्राइवेट कंपनी इज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 268। मिनिमम पर्सन्स कितने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए? दो, मैक्सिमम 200, 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी, ठीक है? मिनिमम पेडअप भी इसका दिया था लेकिन 2015 अमेंडमेंट में हट गया। रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी और शेयर्स होती हैं, प्राइवेट कंपनी है भाई, प्राइवेट लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं, तो यहाँ पे आप शेयर्स को इजीली ट्रांसफरेबल नहीं, एक्सक्यूज मी, ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, थोड़ा यहाँ पे ज्यादा कंप्लायंस करना पड़ता है। एंड लास्ट इज दैट प्राइवेट कंपनी नेम्स एंड्स विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? तो ये दोनों, आई मीन ये डिफरेंस है दोनों कंपनीज में, विच इज पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। इज इट क्लियर? बेटा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है? ओके, बाकी देखो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड तो ध्यान ही रहेगा आप लोग को, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ओपीसी में एज अ नेम सजेस्ट एक ही बंदा रहेगा, वही डायरेक्टर होगा, वही मेंबर होगा, वही करता धरता सब कुछ होगा, ठीक है? एक ही पर्सन होता है, वन पर्सन कंपनी में। एंड सी ओपीसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62। और जो उसका नेचर होता है ओपीसी का, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है? ओके, प्राइवेट कंपनी ही होती है, तो प्राइवेट कंपनी के ही फीचर्स यहाँ पे ऐड होंगे। सो दिस इज इट ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनी। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन से पहले लेट अस अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स व्हिच इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब ये दोनों हम लोग समझ लेंगे तब हम लोग रजिस्ट्रेशन पे आएंगे। आइए समझते हैं व्हाट इज मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है, कोई आइडिया है? बताइए, कभी सुना है आपने मेमोरेंडम क्या है? यस, एनी आइडिया? एनी आइडिया? प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनी? अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनी नहीं बेटा, प्रिंसिपल्स नहीं बोल सकते हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा उतना, प्रिंसिपल्स तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और सोचो मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बताइए, सोचिए। Purpose of formation of company is the scope of business. Yeah, we can say it. Scope of business. कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। Okay, anyone else? Memorandum? No one? भावे, you want to guess? क्या आपको पता है मेमोरेंडम क्या होता है? ठीक है। देखो मैंने जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं आपके सामने वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन अंडर सेक्शन 4, राइट? एंड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, इन दोनों को आप साथ में मिला के क्या कहते हैं? दे आर नोन एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रेलेवेंस होता है, क्या मुझे कोई बताएगा?
Bhavika is saying कि it defines the information of the company. Okay. अच्छा, what is the essence of constitution? बताओ क्या होता है essence constitution का? जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़े हैं? उसका क्या रेलिवेंस है लॉ में या सोसाइटी में? क्या रेलिवेंस है बताइए। Yes, it is the base of every statute. Can we say this? It is the base, it is a grundnorm for every statute, for every legislation, for every type of rule or law we are having. Yes, yes. तो वही काम आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का भी होता है, ठीक है? ऑल राइट, देखो मेमोरेंडम्स क्या होता है? इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच company is formed. It identifies a possible scope beyond which company actions cannot go. This is very important line to remember. ठीक है, आपको चाहे भले ये याद हो ना हो, लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मेमोरेंडम इज लाइक लक्ष्मण रेखा। अगर उसके बाहर आप नहीं जा सकते हो, अगर उसके बाहर गए तो गए, ठीक है? तो आपके एक्ट्स की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। दैट इज वाई मेमोरेंडम इज सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है? सो बेसिकली मेमोरेंडम प्रोवाइड्स व्हाट कंपनी डज, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ कंपनी, ठीक है? व्हाट आर द लिमिटेशंस, बेसिकली व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंपनी बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट गो। या यस, नो अल्ट्रा वायर्स। इफ द अल्ट्रा वायर्स इज हैपनिंग, डेफिनेटली नल एंड वॉइड हो जाएगा एक्ट कंपनी का, ठीक है? एंड जो मेमोरेंडम होता है, इट बेसिकली स्टेट्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है? कोई कुछ ऐसे क्लॉजेस भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जैसे ऑब्जेक्ट हो गए, नेम है, लोकेशन, लोकेशन मतलब जैसे वो होता है ना आपका रेसिडेंस, कंपनी का क्या है, सिचुएशन, एंड क्या कह रही थी, लाइबिलिटी क्या है कंपनी की, कैपिटल कितना होगा, सब्सक्राइबर्स कितने होंगे, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके मेमोरेंडम में दिए हैं, ठीक है? तो एक जो आउटर क्या कहते हैं, आउटर इंफॉर्मेशन जो होती है कंपनी की, जो कि इम्पोर्टेंट है लोगों को बताने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरेंडम में होगी, ठीक है? थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट enables shareholders, creditors and all those who deal with the company to know what its powers are. So memorandum basically deals what are the powers of company. So you can see the clauses which is present under memorandum, ठीक है? मेमोरेंडम एक आपका काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि आपके ये सारे क्लॉजेस होंगे, ठीक है? सिस्टम में है। हाँ जी, तो पहला है नेम क्लॉज, सेकंड है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेक्स्ट है आपका कैपिटल या लाइबिलिटी क्लॉज, देन सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। नॉमिनी क्लॉज कब होता है? जब ओपीसी कंपनी है तो, ठीक है? बाकी प्राइवेट और पब्लिक के केस में नॉमिनी क्लॉज नहीं होगा, ठीक है? चलिए, नेम क्लॉज में क्या है? Name of the company to end with either limited or private limited. In case of OPC, the word OPC shall be written within bracket after the name. ठीक है? तो नेम क्लॉज तो आपका ये कहता है मेमोरेंडम का। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कहाँ, कौन से स्टेट में, या मतलब लाइक कौन से स्टेट में और क्या एड्रेस है कंपनी का, कहाँ हेडक्वार्टर है, आपको कम्युनिकेट करना होगा तो आप कहाँ कम्युनिकेट करोगे? मेल तो है ही, लेकिन एक लोकेशन भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है? थर्ड है आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर विच कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी अदर मैटर,
ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कंपनी को क्लियरली मेंशन करना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट इज योर लाइबिलिटी क्लॉज, की लाइबिलिटी कंपनी, अरे लाइबिलिटी कैसी है कंपनी की, क्या लिमिटेड बाय शेयर्स है, क्या लिमिटेड बाय गारंटी है, या या हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, ये हमने तीन लाइबिलिटीज पढ़ी थी जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कितना कितना क्या है, अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो कितनी कितनी क्या है। ठीक है, तो ये आपका लाइबिलिटी क्लॉज में आता है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल क्लॉज। In the case of a company having share capital, the authorized share capital and its division in number, तो कैपिटल क्लॉज में आपको ये दिखाना होगा कि आप कहाँ तक कैपिटल उठा सकते हो, उसी को ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। आप कितना कैपिटल उठा सकते हो, कितना आपने ऑलरेडी उठा लिया है कैपिटल, ठीक है, कितना इशू हुआ है, कितना सब्सक्राइब हुआ है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके कैपिटल क्लॉज में दिए रहते हैं। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होता है कि इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द पर्सन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ द शेयर्स व्हिच द पर्सन अग्रीज टू टेक। अब सब्सक्रिप्शन क्लॉज में देखो, आपको पता है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, तो उन लोग का नाम, एड्रेस और ये दिया रहेगा कि कितना कितना शेयर लेके ये लोग बैठेंगे। ठीक है, तो ये है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज। लास्ट आता है आपका नॉमिनी क्लॉज। नॉमिनी क्लॉज आपका प्राइवेट पब्लिक पे नहीं अप्लाई होता है, ओपीसी में अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि ओपीसी एक ही आदमी चला रहा होता है, अगर कल को वो नहीं रहा तो उसकी जगह कौन देखेगा ओपीसी को। ठीक है, बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कंपनी का कि इट हैज गॉट परपेचुअल एग्जिस्टेंस। पीपल में कम, पीपल में गो, बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। तो ओबीसी को कैसे जिंदा रखें, तो इसलिए यहाँ पे एक्सक्यूज मी, नॉमिनी क्लॉज यहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, ओके, आई होप सारे क्लॉजेस आपको समझ में आ गए मेमोरेंडम के। यस और नो? यस और नो एवरीवन? चलो, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। An act is considered to be ultra vires which is beyond the powers. Ultra vires का मतलब होता है beyond the powers. So अगर कह रहे हैं कि कंपनी इज अल्ट्रा वायर्स, इसका मतलब कंपनी इज एक्टिंग बियॉन्ड इट्स पावर। ठीक है, द कंपनी इज एक्टिंग बियॉन्ड इट्स पावर, हेंस अल्ट्रा वायर्स एक्ट बिकम वॉइड एंड डजंट बाइंड द कंपनी। ठीक है, अगर अल्ट्रा वायर्स एक्ट कर रही है कंपनी, डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बाइंड द कंपनी, वो ऑटोमेटिकली जो पर्टिकुलर एक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी नल एंड वॉइड। ठीक है, यही है आपका अल्ट्रा वायर्स। सो नीदर द कंपनी नॉट द कॉन्ट्रैक्टिंग parties can sue on it. The company cannot make it valid even if every member assent to it. ठीक है, is it clear? Yes or no? ठीक है, ये हो गया आपका अल्ट्रा वायर्स। इससे रिलेटेड एक केस है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस ऋषि। ठीक है, ये सुना है आपने कभी नाम एशबरी का? बताओ, भाविका ने सुना है, और बताओ किसी ने सुना है? चिन्मयी ने भी सुना है, अच्छा बता दो क्या हुआ था। फैक्ट्स तो आपके सामने हैं ही, लेकिन फिर भी बता दो। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ ऑल्सो, उसके बाद भी आप कर सकते हो डेफिनेटली। इट वॉज अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, हाँ बिल्कुल।
I don't remember much. Okay. Yeah. Yeah. Sorry for the excuse. तो देखो, एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी का ये है फैक्ट। इसमें जो कंपनी है एशबरी कंपनी, इन्होंने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये मेंशन किया था कि they are going to make and sell or lend or hire railway plants to carry on the business of mechanical engineers and general construction। ये इनका ऑब्जेक्ट क्लॉज है, ठीक है, ये मेमोरेंडम में इन्होंने दिया था। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जो एशबरी कंपनी थी, दे हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मेजर्स रीशे, रीशे बोलो या रिच बोलो, जो भी कह लो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या किया था, कंपनी ने एक ये मेजर्स के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, क्यों, आई मीन किस काम के लिए, टू फाइनेंस अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम, ठीक है। क्या काम के लिए किया, फाइनेंस करने के लिए। इनका ऑब्जेक्ट क्या है, मेक, रुको दिखाती हूँ आपको। इनका ऑब्जेक्ट क्या है, मेक, सेल, लैंड और हायर। क्या हायर करना है, रेलवे प्लांट्स को। बगैर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। अब ये बताओ, ये दोनों मैच कर रहा है, या आपको लगता है कि ये जो उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में आना चाहिए या ऑब्जेक्ट क्लॉज के स्कोप में है? यस। जी बताइए, मैच हो रहा है यहाँ पे? हम्म। नो मैच। बाकी लोग बताइए, मैच हो रहा है? नो। हाँ, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। यार आपका काम है मेक, सेल, लैंड और हायर करना, उसके बाद आप बाद में फाइनेंस करने चले हो, तो ऐसे थोड़ी होगा कि कुछ भी करने चले जाओगे। हाँ, मेमोरेंडम जैसी कोई चीज होती है। सो इसीलिए यहाँ पे the contract was held ultra vires, so this is the first case in which the doctrine of ultra vires was evolved। मेरा फिर कर्सर गायब हो गया, एक मिनट रुक जाओ, ये एनोटेशन में ना ये हाथ ही जाता है, एक सेकेंड। हाँ, held that the contract was ultra vires the company and therefore null and void, this can't be ratified। ठीक है, तो भाई इस तरह का आप करके कॉन्ट्रैक्ट करोगे, डेफिनेटली इट विल बी अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। और ये रैटिफाई भी नहीं हो सकता। रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि ये बाद में भी जाके अप्रूव नहीं हो सकता, चाहे भले पूरे शेयर होल्डर्स बोलते हैं या पूरे डायरेक्टर्स बोलते हैं। भाई जो गलत है तो गलत है। इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, इट डजंट मीन दैट यू कैन गेट इट अप्रूव्ड लेटर ऑन। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? ठीक है, समझ में आया अल्ट्रा वायर्स? चलो। अरे यार फिर गायब हो गया, एक मिनट। Present scenario देख लेते हैं एक बार। That the purpose of ultra wires has been defeated, as now object clause can be easily altered by passing just special resolution by the shareholders। तो ये इनका एक मतलब like this is a present scenario, this is the present reality, कि इतना भी अब मुश्किल नहीं रहा कि आप जो मेमोरेंडम की जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है आप उसको नहीं जल्दी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बाय द शेयर होल्डर्स आप उसको चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज को। ठीक है, तो अल्ट्रा वायर्स का तो अब आज की डेट में उतना रेलिवेंस नहीं है, बट ये जो एशबरी वाला केस है ये कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट। ऑल राइट, जब आप कंपनी लॉ देखेंगे, ठीक है, कंपनी लॉ का मैं दिखाऊंगी आपको बाद में भी,
बेयर एक्ट जब आप खोलेंगे, ठीक है, तो उसमें एक आपको टेबल मिलेगा। टेबल ए में आपको मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, टेबल बी में मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसे ऐसे करके आपको वहां पे सारे जितने भी कंपनीज हैं उनके कैटेगरीज के आपको वहां पे फॉर्मेट मिल जाएगा कि ऐसे कंपनीज का कैसा मेमोरेंडम बनता है। ठीक है, तो आप तुरंत अगर अभी आपको रेफर करना है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं फॉर्मेट, टेबल ए रेफर करिए, टेबल ए से लेके टेबल ई तक आपको सारे कंपनीज के आपको वहां पे मेमोरेंडम का फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट में। ठीक है, कंपनीज एक्ट का जो बेयर एक्ट है, रुको मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। मुझे पता है आप लोग नहीं देखोगे, लेकिन एक बार देख लोगे ना तो क्लैरिटी रहेगी दिमाग में। अच्छा देखो, मैं जो कंपनीज एक्ट है ना, अ, मैं इसको यहाँ से रेफर करती हूँ हमेशा, एमसीए के वेबसाइट से। ठीक है, ये एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे मुझे अपडेटेड वर्जन मिल जाता है। ठीक है, बाकी आप डेफिनेटली इंडिया कोड पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया है कि वहाँ पे उन्होंने अपडेट किया है कि नहीं किया है, तो मैं मैक्सिमम यहीं से देखती हूँ, वो भी ई बुक वर्जन देखती हूँ। पीडीएफ वाला तो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, समझ में नहीं आता उसका। ठीक है, तो ये देखो, ये बेयर एक्ट का कंटेंट है। ठीक है, आप सब लोग देख सकते हो। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। कैन यू पीपल सी इट? ठीक है। हम्म। अब देखो, शेड्यूल वन में गई मैं, ये देखो, ये रहा। शेड्यूल वन में टेबल ए जो दिया है, इट टॉक्स अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब जो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है उसका फर्स्ट क्लॉज में क्या होगा, सेकंड क्लॉज में क्या होगा, थर्ड क्लॉज में क्या होगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लॉज में क्या क्या होगा, वो सारी चीजें देखो, यही फॉर्मेट होता है मेमोरेंडम का। ठीक है। ठीक है। ओके। सेवेंथ में आपका नॉमिनी क्लॉज है। ठीक है, अब यही अगर आप बी देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, मेमोरेंडम लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो ऐसी चल 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 के अगर आप देखोगे, मैं बस एक बार आपको फॉर्मेट दिखाना चाह रही थी। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए इतना भी डीपली जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अगर आप देखे रहोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ मेमोरेंडम होता क्या है, ठीक है, दिखता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ठीक है, शेड्यूल वन में ही आपका मेमोरेंडम दिया है। ठीक है, टेबल सी डी ई तक, एफ। ओके, नहीं एफ से तो आपका वो शुरू है, यस, टेबल ई तक दिया है, फिर एफ से आपका शुरू हो जाएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी आर्टिकल्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेबल एफ से आपका फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का आपको यहाँ से फॉर्मेट मिल जाएगा कि हाँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या दिया रहता है। ठीक है, ये मेमोरेंडम वाला समझ में आया। ठीक है, अब आइए यहीं पे आर्टिकल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल्स से आप लोग क्या समझते हैं, बताइए। मेमोरेंडम तो आपने समझ लिया, इट्स अ काइंड ऑफ अ लक्ष्मण रेखा, बट व्हाट अबाउट आर्टिकल्स एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंपनी? बताइए, व्हाट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? गेस वर्क बिल्कुल चलेगा, गलत बताओ लेकिन बताओ, कुछ भी बताओ लेकिन बताओ। और ये ध्यान रहे, ये आर्टिकल्स और मेमोरेंडम दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं कंपनी के लिए। चिन्मय कह रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ये आर्टिकल्स दे इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस।
और बताइए और कुछ, और क्या होता है आर्टिकल्स में? एनीवन? सो देखो, मेमोरेंडम तो आपको बता दिया आउटर स्पेस का। अच्छा, इट कंडक्ट्स, आई बिलीव, इंटरनल लिख रहे हो आप, है ना चिन्मयी? इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, हाँ। इट मैनेजेस बेसिकली। तो मेमोरेंडम का आपको पता चल गया, राइट? उसके थ्रू आपको आउटर स्कोप पता चल जाएगा कंपनी का, कि कंपनी क्या करती है, क्या नाम है, कहाँ लोकेटेड है, क्या लाइबिलिटी है, कितने मेंबर्स है, ठीक है। बट जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए रहते हैं कि कंपनी कैसे काम करेगी, ठीक है। कि कितना, सॉरी, जैसे शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या राइट्स होंगे। देखो यहाँ पे ना मैं आपको कंटेंट दिखा देती हूँ। शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स, excuse me, lien, calls on shares, transfer of shares, transmission of shares, forfeiture of shares, ऑल्टरेशन, कैपिटलाइजेशन, तो ये सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मीटिंग्स है, तो मीटिंग्स हो गए, डायरेक्टर्स है और रेम्यूनरेशन है उनके। तो बात ये है कि आर्टिकल्स में आपको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे जिसके थ्रू कंपनी काम करेगी। Yeah, it may also, we can also say that it deals with the relationship between members inter se, ठीक है। कि एक मेंबर का दूसरे मेंबर से क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, वो भी हमें बताती है आर्टिकल्स। तो मतलब जो भी है आपके इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो है वो कैसे होगा कंपनी का, वो हमें पता चलेगा आर्टिकल्स के थ्रू, ठीक है। इज इट क्लियर? एक आपको, रुको ये भी दिखा देती हूँ, एक बार स्लाइड दिखाती हूँ आपको, आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये समझ में आया? टेबल ए से आपको मेमोरेंडम्स दिखेंगे, फिर टेबल एफ से आपको आर्टिकल्स दिखेंगे, ठीक है। इसके आप फॉर्मेट देख सकते हैं वहां पे जाके, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, देखो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये आपका सेक्शन 5 में दिया है। It contains internal rules and regulations of the company. It contains regulations and it, yeah, inclusion of matters. हाँ ठीक है, it includes the matters with respect to the company, वही जो important आपके matters होते हैं, कैसे कंपनी चलेगी, राइट, वो सारी चीजें। एक थर्ड फीचर है विच इज नोन एज इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट जो पॉइंट है, ये पहले 2013 से पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन 2013 में एक ये नया प्रोविजन ला दिया गया है, इंट्रेंचमेंट। अब इसका मतलब होता क्या है? देखो, आर्टिकल्स को चेंज करना, अमेंड करना वाज नेवर हार्ड, इट वाज नेवर डिफिकल्ट, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 ने, मेमोरेंडम को चेंज करना बहुत टफ था, डिफिकल्ट था, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। और आर्टिकल्स को चेंज करना बहुत ही सिंपल था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तुरंत एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, खत्म करो मामला, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, थोड़ा सा दोनों को बैलेंस किया गया है, थोड़ा सा, मेमोरेंडम की जो स्ट्रिंजेंट जो थे उसके प्रोविजन थे, उसको थोड़ा लूज किया गया है। कि जो स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर था फॉर चेंजिंग, फॉर अमेंडिंग दी मेमोरेंडम, उसको थोड़ा सा लूजन अप किया गया है। और वही आर्टिकल्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है थ्रू द इंक्लूजन ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग विच इज नोन एज इंट्रेंचमेंट, ठीक है। इट मीन्स मेकिंग समथिंग मोर प्रोटेक्टिव। अब ये होता क्या है मैं बताती हूँ। इंट्रेंचमेंट, पहली बात, इट कैन ओनली बी मेड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। और अगर आपको प्राइवेट कंपनी है आपकी, तो आप अपना आर्टिकल्स नॉर्मल अमेंड कर सकते हैं। अगर पब्लिक कंपनी अगर है आपकी, तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके करेंगे। इंट्रेंचमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो कि किसी भी आपको पॉइंट को वो करना है, क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि आपने लिखा
कि लाइक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूँ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको नहीं होल्ड करना है या आप किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं शेयर्स, ठीक है, तो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन अगर मुझे एक्सरसाइज करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि वो लाइक मेंबर क्या कहते हैं, मिनिमम अमाउंट 10 लाख होना चाहिए अगर आप किसी नए बंदे को ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, मान लो मैंने इस टाइप का कर दिया पॉइंट, तो दिस विल बी नोन एज एन इंट्रेंचमेंट। ठीक है, तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट प्रोटेक्टिंग द पर्टिकुलर प्रोविजन। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं वहां पे कुछ कंडीशन डाल दूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस और नो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग हॉस्टल में मान लो रह रहे हो या कभी रहे होगे, ठीक है, कॉलेज के, तो वहां पे क्या क्या कहते हैं, एंट्री टाइम होती थी 7 बजे या 8 बजे, 10 बजे, जैसा एज पर द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो 10 बजे तक आपका एंट्री है, तो आप 10 बजे से अगर आप पहली एंट्री कर लो तो फिर ठीक है। लेकिन वार्डन ने एक रूल बनाया है कि अगर आप 10 बजे के बाद आ रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को कॉल करोगे तब आपको एंट्री मिलेगी। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको एंट्री आपकी प्रोहिबिटेड हो गई आफ्टर 10। इट्स जस्ट लाइक कि थोड़ा सा और उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है और कंडीशनिंग वहां पे डाल दी गई है, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कराओगे तब आपकी एंट्री होगी, तो इट्स अ काइंड ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। यस। ठीक है, यस और नो। ठीक है, इंट्रेंचमेंट का मतलब ये होता है कि आप आर्टिकल्स में ही ये यूज होता है, ये मेमोरेंडम में नहीं यूज होगा, ये सिर्फ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ही आपका यूज होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रोविजन को, कोई भी पर्टिकुलर आइटम है आपका आर्टिकल्स में, अगर आप उसको ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप उसमें ये चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये सेक्शन 5 में आपका दिया गया है। रेलिवेंट डॉक्ट्रिन्स विथ रिस्पेक्ट टू memorandum and articles of association, they are constructive notice and indoor management। अब एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा चलो, मैंने डिफरेंस नहीं लिखा, ओके चलो, ठीक है। तो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया बिटवीन व्हाट इज मेमोरेंडम एंड व्हाट इज आर्टिकल्स। मेमोरेंडम जो आपको पावर स्कोप के बारे में बात करता है कंपनी के, वेयर एज आर्टिकल्स बात करता है कि इंटरनल उसका रेगुलेशन कैसे होगा, कैसे कंपनी चलेगी, जो जितने पर्टिकुलर मैटर्स है वो कैसे सारे चीजें एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर सेंटर से, हाउ दे आर गोइंग टू एक्ट। ठीक है, सो दीज वर द फीचर्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम। अब उनसे रिलेटेड दो डॉक्ट्रिन्स है, विच इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। किसी ने सुना है ये दोनों डॉक्ट्रिन्स? यस, किसी ने? हम्म। हाँ, क्या होता है बताइए। व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस? हम्म, क्या होता है बताइए। If anything is fault of management, if anything is fault of management of company, then shall then outsiders are protected। Okay, हाँ हाँ, outsiders are protected in indoor management। ओके, हाँ, ठीक है, सही बोल रहे हो।
ऑलराइट, हाँ। आई नो चिन्मय, बहुत टाइपो बड़ा हो जा रहा है तुम्हारा। सी, द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि दो टाइप के डॉक्ट्रिन होते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एमओए एंड एओए। तो पहले इंडोर मैनेजमेंट देख लेते हैं हम लोग कि इट प्रोटेक्ट्स एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देखो बात ये है कि जो दोनों डॉक्यूमेंट है विच आर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, दे आर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। वो आउटसाइडर्स को, वो पब्लिक को, मतलब ये पब्लिक डोमेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपको जानना है किसी कंपनी के बारे में, तो आप ये जो चार्टर ऑफ कंपनी है विच इज नोन एज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, इन डॉक्यूमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इजीली एक्सेस कर सकते हो कंपनीज के बारे में अगर जानना है तो। तो बात ये है कि आपने तो बीइंग एन आउटसाइडर, अगर मान लो कि आपको कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे? आप अच्छे इन्वेस्टर की तरह हो सकता है, क्या कहते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ोगे। ठीक है, आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को, और जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी आप उसी पे ही रिलाई करोगे। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे दी रहेगी आप उसी पे ही डिपेंड करोगे, उसी पे ही आप रिलाई करोगे। लेकिन एक्चुअल में क्या सिस्टम चल रहा है कंपनी के अंदर, वो जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, या वो जानने की लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि अगर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करना है थर्ड पार्टी के साथ, मान लो 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 5 शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होना जरूरी है। ठीक है, मान लो इस टाइप का प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल्स में, 5 शेयर होल्डर्स हो गए या 50 शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होना जरूरी है। अब वो अप्रूवल शेयर होल्डर से मिला है कि नहीं मिला है, ये जानना आपका काम नहीं है। आपको ये पता है कि ठीक है, चलो क्या कहते हैं कि अगर 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मैं अगर कंपनी के साथ कर रही हूँ, तो मैं तो यही मानूंगी कि हाँ, कि कंपनी अपना जो भी ये इंटरनल रेगुलेशन है वो प्रॉपर कंप्लाई कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो वो उसका हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं। सो दिस इज व्हाट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ये डॉक्ट्रिन का क्या काम है। अगर मान लो कल को कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मान लो कि 5 लोगों ने नहीं अप्रूव किया था, 4 ही लोगों ने अप्रूव किया था, फिर बाद में मान लो कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल केस कर सकती हूँ। एंड इस पर्टिकुलर केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी अप्लाइड। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ डॉक्ट्रिन इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी। कैसे? बिकॉज आई मैं तो पढ़ ली, ठीक है, जो भी आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट था मैं तो पढ़ ली और मैं वही मानूंगी। लेकिन आपने एक्चुअल में जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एक्चुअल में कंप्लाई किया है कि नहीं किया, वो मैं कैसे जानूं? ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। They presume that the internal proceedings are as per the documents which is submitted to ROC. ROC का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कि कंपनी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके पास सेव्ड रहती है। ये फील्ड ऑफिसर्स होते हैं आरओसी, ये भी मैं बाद में बात करूंगी। ठीक है, सेक्शन 7 डिस्कस करने से पहले ही बात करेंगे। ठीक है, सो इट्स ही इज अ काइंड ऑफ ऑफिसर जिसको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंपनी दे देती है। एक केस था, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन, इन विच द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वाज इवॉल्व्ड। ठीक है, इन विच इट वाज हेल्ड दैट द आउटसाइडर्स आर बाउंड टू नो द एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ द कंपनी बट दे आर नॉट बाउंड टू नो इट्स इंडोर मैनेजमेंट, जिसमें ये हेल्ड हुआ था। ठीक है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन। ठीक है, तो ये रहा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि जो आउटसाइडर्स हैं इनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आउटसाइडर्स तो ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट पढ़कर आ रहे हैं एंड दे आर रिलाइंग ऑन दोज इंफॉर्मेशन। अब ये तो कंपनी का हेडेक है कि उनकी एक्चुअल जो रियलिस्टिक इंटरनल प्रोसीडिंग्स है वो कैसी चल रही है, वो कंपनी के ऊपर बर्डन है। ठीक है, अगर नहीं ठीक से कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंपनी इज गोइंग टू पे। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये होता है कि सिंस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स दे आर प्रेजेंट इन पब्लिक डोमेन, आप आरओसी से खरीद सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आरओसी एंड, अरे
MOA एंड AOA, आप खरीद के उसको पढ़ सकते हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी का कितना क्या स्कोप है बिजनेस का, क्या क्या उसके प्रोविजंस है, क्या क्या उसके इंटरनल रेगुलेशंस है। ठीक है। आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो वहां पे डायरेक्टर आपको बैठ के सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन करेगा। तो दिस वाई दैट इज वाई इट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो अगर आपसे मान लो कुछ गड़बड़ी हो रही है तो फिर बर्डन आपके ऊपर आएगा, लाइबिलिटी आपके ऊपर आएगी। राइट। यहाँ पे डायरेक्टर्स या कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये जो डॉक्ट्रिन है इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और द इंटरनल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। इंडोर मैनेजमेंट का जस्ट ऑपोजिट है। राइट। Yes or no? So see, MOA and AOA, they are publicly available for any interested person to go through. The doctrine of constructive notice states that any person entering into a contract with the company will be presumed to have gone through and understood the documents in their true sense. It protects the interest of the company and subscribers against the persons who remain ignorant to due diligence. ठीक है। So ये आपके दो doctrines थे. Is it clear, everyone? Is it clear to everyone? Yes or no? ठीक है। ऑल राइट। सो और कंटिन्यू करूं आज? बताइए। कंटिन्यू करना है? टाइम क्या हो रहा है कि अभी तो 8:05 ही हो रहा है। हाँ जी। चलो एक छोटा सा डॉक्ट्रिन कर लेते हैं, फिर आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। ठीक है। फिर सेक्शन 7 नेक्स्ट क्लास में हम लोग उठाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। ये डॉक्ट्रिन सुना है आपने? देखो मैं बताती हूँ। The court will break through the corporate shell and apply the principle, what is known as lifting or piercing the corporate veil. The court will look behind the corporate entity and take action as though no entity separate from the members existed and make the member. अब देखो जो कंपनी है वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। एक्चुअल में कंपनी को कौन चलाता है? डायरेक्टर्स चलाते हैं, उसके मेंबर्स चलाते हैं। अगर आज की डेट में डायरेक्टर कोई फ्रॉड कर रहा है किसी थर्ड पर्सन के साथ या किसी के भी साथ, तो लाइबिलिटी किस पे आनी चाहिए? कंपनी पे आनी चाहिए कि डायरेक्टर पे आनी चाहिए? जल्दी बताओ। बताओ। अगर डायरेक्टर किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है देन द लाइबिलिटी शुड बी अपॉन whom? कंपनी या डायरेक्टर्स? बताइए। डायरेक्टर्स। सो द रियल कल्प्रिट शुड बी फाउंड आउट। ठीक है। दैट इज वाई ये जो प्रोविजन है, अरे ये जो डॉक्ट्रिन है ये इवॉल्व हुआ। See, the court will look behind the corporate entity and take action as though no entity is separate from the members existed, and make the members or the controlling persons liable for the debts and obligations of the company. ठीक है। तो ये एक छोटा सा डॉक्ट्रिन है विच इज नोन एज कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल का मतलब वो होता है, वेल का मतलब वो होता है, पर्दा होता है, कर्टन होता है कि भाई जिसने फ्रॉड किया है या जो गलती कर रहा है, ठीक है, दो द कंपनी इज बीन रन बाय द डायरेक्टर्स, ठीक है, तो कुछ भी एंड वट एवर डायरेक्टर्स आर डूइंग द कंपनी इज बाउंड बाय दोज एक्ट्स। राइट। बट अगर कुछ गड़बड़ काम हो रहा है, कुछ फ्रॉड हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो डजेंट मीन कि सारी की सारी लाइबिलिटी कंपनी पे ही जाएगी। जो एक्चुअल जो रॉन्ग ये रॉन्ग डूअर होगा डेफिनेटली उसके ऊपर लाइबिलिटी जाएगी। ठीक है। सो इससे रिलेटेड दो केस हैं, जॉन्स वर्सेस लिपमैन और सर दिनशा मानिक जी। ठीक है। ये आपके दो कुछ लैंडमार्क लैंडमार्क नहीं है बट ठीक है, ठीक ठाक केसेस हैं। ठीक है। इस केसेस का एक सेकेंड ना। ऑलराइट। जॉन्स वर्सेस लिपमैन में तो फ्रॉड हुआ था, और सर दिनशा मानिक जी में इसने क्या किया था कि इसने 3 या 4 कंपनीज खोल ली थी। ठीक है। और उसी कंपनी में कहीं कहीं मतलब अपने ही टैक्स बचाने के लिए ये खाली बस पैसे घुमा रहा था अपने तीनों कंपनीज में।
तो यहाँ पे जो आई गेस टैक्स इवेजन वाला लगा था इस पे, तो टैक्स इवेजन का लाइबिलिटी किस पे लगा था? दिनशा मानिक जी पे, राइट? राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। अगर कुछ भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई डील विद इट, ठीक है? सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो? चलिए, चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। अच्छा, यू हैव क्वेश्चन? बताओ बताओ। Ma'am, it's not related to company law. I just wanted to ask how are we supposed to go about the test series, the mock tests? मॉक टेस्ट तो आपको मिले हैं ना? Yes, ma'am. That is what I'm asking. So, I mean, are we supposed to do it with the class, or I mean, will there be discussions, or are we supposed to do it on our own? नहीं, मॉक टेस्ट आर सपोज टू बी डन बाय योर ओन। हम्म। Okay, ma'am. मॉक टेस्ट यहाँ पे नहीं डिस्कस होते हैं, बट हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है रिलेटेड टू मॉक टेस्ट, कोई भी क्लैरिटी करनी है तो यस यू मे आस्क, ठीक है, इन द क्लास, और यू कैन ईमेल मी आल्सो, राइट? Okay, ma'am. And are we going to do subject-wise questions? Are we going to practice that in class or not? सी, जो आपको ज्यूरिसिट से मिला है वो हम लोग नहीं जनरली डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास कुछ एमसीक्यू होगा तो मैं बिल्कुल वो डिस्कस करूंगी। उसमें से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डेफिनेटली यू कैन आस्क। Okay, ma'am. हाँ, because if we start doing all those things ना, that will be like unnecessary extension of classes, right? And आप लेकिन वो देखिए, मॉक्स ऐसी चीज है कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है? आप Yes, कहीं ma'am. फंस रहे हो तो फिर आप बताओ। Okay, ma'am. ठीक है, हाँ, Thank you. चलो, ओ, थैंक यू।